Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina amma ba'd. अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह की किताब मवाद हसना जिल्द अव्वल से चल रही है तसव्वुफ के ऊपर. दिस इज़ आवर फर्स्ट नाइट इन द खानका सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम. डाल दे मुझे सलाम जी मान रहा है बस थोड़ा सिग्नल का माना मैं पहुंच नहीं रहा. अच्छा चेक करनी नहीं आ रही अभी, यानी अभी तक तो कोई लिंक आई नहीं है यहाँ पे. चल रहा है. लिंक भी क्लिक करेंगे. मुत्तक़ियों के लिए आखिरत है जो दुनिया से बहुत बेहतर है, मगर ये समझने के लिए अक्ल व बसीरत की ज़रूरत है. दुनिया तो मुसाफिर खाना है, आखिरत हमेशा रहने की जगह है. दुनिया की हर चीज़ फ़ना की तरफ जा रही है. जिस्म, सेहत, क़ुव्वत, ताकत, गरज हर उज़्व में इन्हितात व तनज़्ज़ुल है. आखिरत की हर चीज़ में हमेशगी है. आपकी दुनिया आखिरत के साथ है. आप आखिरत दुरुस्त कर लीजिए तो दुनिया भी आप आखिरत दुरुस्त कर लीजिए, दुनिया भी परवरदिगार आलम दुरुस्त फरमा देंगे. The Sheikh is saying, for the pious people, akhirat is better than dunya. But to understand this, you need aql and basirat. Dunya is just a temporary abode. Akhirat is a place to live forever. Everything in dunya is going towards downhill. Everything in dunya, every new thing becomes old. Every young becomes old. Every beautiful becomes ugly. Everything which is nice becomes not nice. This is what happens in the dunya. So, even for example, a person, he's happy, about getting a new car or a wife or, a child. After some time, it all becomes normal. That new feeling of euphoria is gone. That's how dunya is. In the akhirat, is the other way around. In the akhirat, like for example, when you're getting married first time, how happy you are. In the akhirat, it is going to be like that. And Quran says, وَلَدَيْنَا مَزِيد. That is the beginning of the happiness. Then that happiness keeps on increasing. In dunya, happiness comes and goes down. Akhirat, happiness comes and increases up. This is the difference between dunya and akhirat. In dunya, anything which you get the happiness, it starts going down. हर जो खुशी मिलती है, खुशी मिलते उसके बाद वो खुशी आहिस्ता आहिस्ता से कम होने लगती है. बहुत लोग कहते हैं अमेरिका आने की खुशी है, बहुत लोग कहते हैं भाई बीवी के मिलने की खुशी, बच्चे की पैदाइश की खुशी, नया जॉब मिलने की खुशी, यूनिवर्सिटी में दाखिले की खुशी, फिर ग्रेजुएशन की खुशी, पता नहीं कितना हज़ारों खुशी. लेकिन उसके बाद फिर वो स्टार्ट्स, खुशी आने के बाद फिर आहिस्ता 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 आहिस्ता. आखिरत में क्या है, खुशी मिलते ही वो कुरान कहता है बढ़ते रहेगी बढ़ते रहेगी बढ़ते रहेगी. जैसा जैसा वक्त गुजरते जाएगा खुशी बढ़ती चली जाएगी. As the time goes by, that happiness and everything of akhirat keeps on increasing. It's totally opposite the way of dunya. Dunya is designed to go downhill. आखिरत का अजर मुत्तक़ियों को देने का वादा है, इसलिए मुत्तक़ी बने रहिए. मुत्तक़ी वो है कि जो नफ्स को ख्वाहिशात, दिल को गफलत,
हलक को हराम ग़िज़ा, जिस्म को हराम माल, आज़ा को तमाम गुनाहों से बचाए, दोज़ख की दहशत से हमेशा गमगीन रहना और रात दिन खुदा से डरते रहना, ये तक़वा है। तक़वा का बड़ा बताया, तक़वा है क्या चीज़? क्या है तक़वा? आखिरत का अजर मुत्तक़ियों को देने का वादा है। Allah has promised that the pious will be rewarded in the akhirat. That's why become muttaqi. मुत्तकी वो है जो नफ्स को ख्वाहिशात, who is a muttaqi? The one who controls his desires and he controls his heart from negligence, from not negligence, गफला तो क्या कहेंगे? नेगलिजेंस सही है। negligence का सही फिट नहीं बैठता हूँ। अच्छा, हाँ, यानी इग्नोरेंस नहीं, मुत्तकी यानी जो नफ्स को, अच्छा दिल को गफलत, यानी गफलत is means that he, he controls his heart of being unforgetful. He does not forget Allah. Ghaflat means to forget Allah. ये सही। He is unforgetful of Allah. His heart is unforgetful of Allah. Halaq ko haram ghiza. He stops his throat from ingesting, from injecting or और क्या कहेंगे उसको? इल्ली और प्रॉफिट or transferring haram from your throat. जिस्म को haram माल, and control your jism from the haram mal. Protecting your body from haram. Protecting your body from haram. काम क्या होती है लीगल? आज़ा को तमाम गुनाहों से बचाए. And he needs to control his body from sins. And because of the fire of Jahannam, he's always worrying. This is called taqwa. तक़वा एक मजबूत रस्सी है, इसको थाम लीजिए तो जन्नत पे पहुँच जाएगा. दरवाज़ा खोल देना, पता नहीं भूख बहुत ज़ोर से आ रही है, दरवाज़ा खोल देना. तक़वा एक मजबूत रस्सी है. तक़वा जो है, इट्स अ वेरी पावरफुल रोप. इसको थाम लीजिए, होल्ड ऑन टू दिस, तो जन्नत में पहुंच जाओगे. जिस तक़वा छोड़कर गुनाहों में मुब्तला होगा वो आखिरत के अजर से महरूम रहेगा. The one who leaves taqwa and gets involved, he will forget the ajr of akhirat. आलम बरज़ख में गुनाह तरह तरह के अज़ाब बनकर तकलीफ़ पहुँचाएंगे. मेरे प्यारे, मुत्तक़ियों के मुतालिबात अल्लाह पूरे फरमाया करते हैं. अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आपका लाइट चल रही है. Allah subhanahu wa ta'ala fulfills the needs of the pious people. मुत्तक़ियों के मुतालिबात अल्लाह पूरे फरमाते हैं. नंबर 1, तरक्की रोज़ी के लिए तक़वा कीमिया का असर रखती है. To get the increment in your money, if you want to make more money, acquire taqwa.
by acquiring taqwa, Allah will increase your money. तक़वा को अपने ऊपर लाजिम कर लीजिए. And a person should make sure that he fulfills the taqwa. हमेशा खुदा ताला और उसके रसूल की ताअत में सरगर्म रहिए. खुदा से डरते रहिए, उसके बतलाए हुए अहकाम पर अमल करते रहिए और इसके मना किए हुए कामों से बचते रहिए. इससे आपकी दीनी दुनियावी काम इंशाअल्लाह बन जाएंगे. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला will take care of your efforts. किसी के वो सॉस की वो आ रही. जो तकवा छोड़ेगा गुनाहों में मुब्तला होगा. सच्चे मुसलमान बनकर मुत्तकी बने रहिए. मुत्तकियों के साथ इस वक्त तक तकवा रहता है जब तक कि वो हराम के खौफ से बहुत ही हलाल चीज़ों से बचते हैं. हज़रत महमूद इब्न महरान से रिवायत है, कोई शख्स बगैर इस बात के मुत्तकी नहीं हो सकता कि हर रोज़ अपने नफ्स ऐसा सख्त हिसाब न ले जैसा कि कारोबार में शरीक से लिया जाता है. You cannot acquire taqwa और फिर कुछ नहीं, तकवा नहीं है. इसकी वजह यह है कि जैसे फूल तोड़कर गुलदस्ता बनाए तो वही फूल ज़्यादा दिनों तक शादाब रहता है. अच्छा बेल वो सॉक्स की किसी की वो हाँ तो वैसे उसका हाँ पाँव भी धोना चाहिए इसको. किसी के हाँ माफ़ करना यार. चेक कर लो किसी के. हाँ अगर जिसमें वो तो दूर कर दो उसको सॉक्स को बाहर फेंक दो निकाल के. बस लोग चंद रोज माफ़ी चाहता हूँ. क्या कहना, मेरी नाक में थोड़ी सी नहीं नहीं वो बड़ा महसूस हो रहा है. मैं माफ़ी चाहता हूँ कि अपने हाँ नहीं नहीं वो सही अभी जो टेम्पररी वो महसूस हो रहा है. थोड़ा सा जना ये सही परफ्यूम दे दो. इससे असल पढ़ा नहीं जा रहा. नहीं नहीं बहुत इफेक्ट हो रही है. अल्लाह आसान कर दे. अल्लाह आसान कर दे. अब कुछ बात नहीं हो. हाँ नहीं अब वो नहीं नहीं तो ये इसकी जो वो होती है ना बड़ी अल्लाह आपको जज़ाए खैर. बहुत अच्छा काम सब जारी हो गया. जी जी चला सब इरादा करें अगली मरतबा. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एवरीबॉडी शुड मेक इंटेंशन that they will not सॉक्स का ख्याल रखें एंड क्लीन द फीट ऑल्सो, क्योंकि सॉक्स उतारने से बू नहीं जाती, पाँव धोने से जाती है बिल्कुल. ये तो खैर तवाज़ु, तकब्बुर, उजुब और अनानियत मर्दानगी इसी में है कि इंसान अपने नफ्स पर काबू याफ्ता हो, नफ्स का ताबे फरमा न हो. The greatness of a man is that a person should control himself. नफ्स को तबाह करने वाली चीज़ तकब्बुर है. The thing which destroys the nafs is the takabbur, arrogance. मगरूर और मुतकब्बिर लोग इस वक़्त तक दुनिया से ना उठाए जाएंगे जब तक कि किसी अदना शख्स के हाथों ने जलील न किया जाए. Arrogant people will never be, they will never die unless and until Allah subhanahu wa ta'ala disgrace them from somebody who is of no value. That's why it's very dangerous. इंसान को तवाज़ु और उज्ज़ और इनकिसारी इख्तियार करनी चाहिए, जिसका तरीक़ा ये है कि अल्लाह की अज़मत उसकी हमेशा पेश नज़र रहे.
Human being has to make sure that he has to be humble. तवाज़ो ये है कि खुद को सबसे कम समझे. In humility, a person should think that he feels he is the most disgraced and inferior individual. लेकिन तवाज़ो के साथ छिछोरापन न हो. With the humility, you should not be, छिछोरापन. Overwise. Overwise. वही. क्या छिछोरापन क्या? गूगल से चेक करो क्या है. छिछोरापन का तर्जुमा क्या होगा? ये भी नहीं है. अंग्रेजी खत्म हो गई. सही है. इसका भी लफ्ज क्या तर्जुमा नहीं हो सकता. छिछोरापन. तवाज़ो के साथ छिछोरापन न हो, सुकून और वक़ार हो. In the humility, a person should not be he should be not he should not try, he should not try to act up. Not a hypocrite about. Yes, and he should have patience and waqar. Waqar means soberness. Huh? Even though they do you wrong. Yes. जो तवाज़ो करता है खुदा उसकी शान बढ़ाता है. The one who is humble, Allah increases his value. खुदा ताला को इनकिसारी पसंद है. Allah loves humility. तकब्बुर से सख्त नफरत है. Allah hates pride. इसने अनानियत और गुरूर किया उसको नीचे दिखाता है. The one who is arrogant, Allah subhanahu wa ta'ala disgraces him. जो तकब्बुर करता है वो खुदा से मुकाबला करता है. The one who is being arrogant is actually he's trying to what do you call trying to fight with Allah. कुरान शरीफ में इब्लीस का जो किस्सा बार बार सुनाया गया और इसी वजह से ताकि मालूम हो तकब्बुर और उजुब की आफत कितनी बुरी चीज़ है. Allah told us the story of Iblis many times in the Quran. Coyote? Coyotes. क्या चीज़ है? वो भेड़िए. भेड़ की बात है. सुभान. इन्हें आते हैं यहाँ पर. Is this the big ones or big ones. no the black ones? You cannot see black or white now. Wolves. These are Only the wolves. sound we can find. Don't have your color? The one have your color? इसी वजह से ताकि मालूम हो तकब्बुर और उजुब की आफत कितनी बुरी चीज़ है. Only sound we can find. Allah subhanahu wa ta'ala told us the story of Iblis alayhi la'na, that how bad arrogance, pride, ego is. तकब्बुर और उजुब खुदबीनी करने वालों का बातिन मिसल कुत्तों की तरह हो जाता है. अगर ये हालत देखी जा सकती तो मालूम होता कि किसी संडास में भी वो गंदगी और नापाकी न होगी जो उनके दिलों में होती है. या अल्लाह. संडास क्या है? टॉयलेट. टॉयलेट. लेट्रिन. उसको संडास कहते हैं. गांव के लोग. बाथरूम. He's saying the of the person of pride is like Smell. dogs. Dogs? Yeah, not drugs, dogs. कुत्ते का दिल होता है. If you could only see his situation, how filthy the heart is, how that bad smell is about his heart. तकब्बुर बहुत मुहलिक बीमारी है.
The arrogance is a very, dangerous disease. Yeah, जानलेवा या ईमान लेवा है. People say that you have the takabbur. The takabbur is some diseases. They what you call, what happens is like they get they die because of the disease. This is the disease which destroys the iman. For example, how can you get the iman without this? He cannot have the iman if he has takabbur. Mutakabbir cannot have the iman. He can have the aqaid, correct, but he cannot have the iman. He can have Islam, the iman. इसका मरीज अपनी गुनाहों को याद नहीं रखता. The first sign of a mutakabbir is this: he will not remember his sins. He will not remember his sins. It's a sign of arrogant person. खौफ खुदा उसके दिल से निकल जाता है. Fear of Allah is out of his heart. खुदा के गज़ब से वो बेफिक्र रहता है. He is Worry free. He doesn't care that Allah will be angry on him. किसी की नसीहत नहीं सुनता. He does not listen to the advice of the people. खुद को सबसे बरतर समझता है. He thinks I am the best of the best. लोगों को हकीर और जलील समझता रहता है. He thinks that people are disgraced, depleted. He has no value of the people. He takes them like crap. इसका मरीज हमेशा अपनी माल, जाह, जमाल, हसब, नसब, इल्म पर फख्र करता है. इसमें पूरा फख्र करेगा वो. The one who has this disease, he will be proud of his wealth. He would be proud of his attitude. He would be proud of. औरतें तो यही समझती है ना हर औरत. But you can say you're beautiful even though you're not most. You can. हर औरत नहीं समझती है. कुछ some women, they think they are the most beautiful. Men also think like that. They think that they have the best progeny. And they think they know everything. इल्म पर फख्र करो. इंसान अपने आप को चेक कर ले, टेस्ट कर ले. You can check yourself that if you have this or not. Each person. Myself and all of us. सही. इसको दोबारा पढ़ लो. Checklist. बात सही. It's a checklist. याद होगा तो फिर उससे बचेंगे. इसलिए अपनी हालत पर ज़रा गौर तो कीजिए तो खुद कहे उठोगे हम जैसे ज़लील हकीर को तकब्बुर सज़ावार नहीं. What I'll read, brother wants me to read it again. What are the signs of arrogance? Number 1, अपने गुनाहों को याद नहीं रखता. He doesn't remember his bad deeds. खौफ खुदा उसके दिल से निकल जाता है. No fear of Allah is heart. खुदा के गज़ब से बेफिक्र रहता है. He is carefree about the गज़ब of Allah, about the anger of Allah. किसी की नसीहत नहीं सुनता. He doesn't listen to anybody's advice. खुद को सबसे बरतर समझता है. He thinks I am the best. लोगों को जलील समझता रहता है. He always thinks that everybody is filthy. हमेशा अपने माल पर फख्र करता. Always he is showing off all his wealth. Wow, I got money, man. What do you think I have? अपनी boast about his position. अपने जमाल पर फख्र करती है या करता है. And he is boasting about his beauty, man or woman. अपने हसब और नसब पर फख्र करता है. He is boasting about his, from such a high family. अपने इल्म पर फख्र करता है कि I'm from the top progeny. I am
from the, what do you call, noble family. I have so much knowledge. इसीलिए अपनी हालत पर ज़रा गौर कीजिए तो खुद कह उठोगे हम जैसे ज़लील हकीर को तकब्बुर सजावार नहीं. चूँकि इंसान में अमर रब है इसीलिए सिफ़ात रब्बानी भी इसकी तबीयत में रखी गई हैं. इन्हीं सिफ़ात रब्बानी का असर है कि इंसान में अनानियत भी है, इसलिए सब पर गालिब होकर रहना चाहता है. इसकी तबीयत ख्वाहिश ये है आज़ाद रहे, किसी का ताबे न रहे, आजीज़ पसंद नहीं करता, इल्म की निस्बत से खुश होता, जहल की निस्बत से आज़रदा. जी आज़रदा यानी कोई मुझे जाहिल न समझे, खुश नहीं आ रही. इंसान because Allah subhanahu wa ta'ala has blew into him so he has that effect of the what do you call, which Allah blew into him. He has the effect of that. That's why he has this ego. He has this he wants to be on top of everybody, and he doesn't want to be under any person, doesn't like humility. He likes that he knows everything. So when he sits in a gathering and he talks, he wants to show that his knowledge is the top of the knowledge. Everybody doesn't know, I know everything. If somebody says, brother, you don't know nothing, he gets upset. एक बुजुर्ग की एक करामत थी कि वो लोगों को रसूल पाक रसूल की ज़ियारत करवाते थे. उनकी बीवी ने उनसे ख्वाहिश जाहिर की मुझे भी ज़ियारत करवाइए. अच्छा तुम जाओ, नहा धोकर आओ और दुल्हन की तरह श्रृंगार करो, दुल्हन बन जाओ. वो बड़ी भी थी बेचारी, बहुत ज़ईफ, 80-90 साल की थी. तो मैंने कहा कि आप पूरी दुल्हन बन के बन जाइए पूरा. बुजुर्ग घर वालों को गुड्डी दुल्हन जी कहा कि आप पूरा लिपस्टिक मेकअप ये बिल्कुल फुल दुल्हन बनना है. तो मेरी बड़ी भी बन गई. इंग्लिश इन बुजुर्ग ने क्या किया, अपने भाई को बुलाया, वो भी बड़े में आते. कहा देखो तुम्हारी बहन को इस उम्र में क्या सूझा, लगता है वो दूसरा शोर करना चाहती है. और वो अंदर भाई साहब आके देखो तो बीवी पूरी बहन साहब मन ढंग की बैठी हुई. तो भाई ने खूब उनको गालियां दी. शर्म नहीं आती इतनी बुढ़ापे में तुमको क्या सूझे, क्या दूसरा शोर करना चाहती हो. और हाथों में मेहंदी थी, चूड़ियाँ थी, दुल्हन बनी हुई थी. ये सुनते ही बीवी ने चूड़ियाँ तोड़ दी, कपड़े फाड़ दिए, रो रो कर बुरा हाल कर दिया. हालांकि शोर ने कहा था तो, और तो चूड़ियाँ तोड़ दी और कपड़े फाड़ दिए, रो रो कर बुरा हाल किया. उसी रंज और गम की हालत में आँख लग गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई. यही तो उठी तो खुश शाज बशाज, बहुत खुश. अपने शौहर से पूछा ये क्या भेद था. आपने फरमाया तेरे दिल में गुरूर था और तू मुझको हकीर समझती थी. जब वो जाता रहा और सोज़ व गुदास पैदा हुआ तो ज़ियारत हो गई. There was one buzurg, one pious man. He used to make dua and people would see Rasulullah. So one day his wife also heard it. She said that, you know what, please do that to me also. He said, okay, no problem.
Go and become like a bride. Wear your best clothes, bangles, henna, all dressed. Just become. He said, okay. She wore everything. Then the husband went to the brother of his brother-in-law. He said to her, look, look at your sister. She in this age, look at how she's dressed up. She wants to marry somebody, she's 80 years old. And she wants to marry somebody at this age. And this is why she's doing all of this. So brother said, let me come and see. He came. And then he said that you should be ashamed of yourself. At this age, you are dressed like this. You are looking for some other men and you're 80. Oh, she felt so embarrassed. She broke her bangles. She tore her clothes. She kept on crying and crying and crying and crying. Because she felt so embarrassed. She went to sleep. In the dream, she saw Rasulullah. So when she got up, she was. What was it? What was it? So husband said that, you have in your heart arrogance. And you used to think as haqir. You know haqir? क्या कहें haqir? You used to think I'm a disgraced individual. Probably, yeah, this is real. Okay, I mean, be little also. Disgrace. So, but because, when I said this, and you did it, now from this created this, it removed that arrogance, and you felt that pain, and you cried. That is the reason you saw Rasulullah ﷺ in your dream. शैतान नेक अमाल से रोकता है वो और बद अमाल ही नहीं करवाता बल्कि वो जिसको जैसा देखता है उसी के ज़रिए से उसको बुराई में मुब्तला करता है जो जिस तरह का है उसको उसी ज़रिए से बुराई में मुब्तला कर देगा नेकों को खुद पसंदी से गुमराह करता है तुम्हारी तरक्की से महरूम कर देता है इसको दूर करने के लिए बड़ी बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं तब कहीं सालिक मंजिल मकसूद को पहुंचता है शैतान stops you from doing good deeds and what it does is this, it destroys you in your own situation. So by having ego and by thinking that you are better than the rest, it stops you from increasing spiritually. To remove this, you need to make a lot of effort. जो कोई अपने नफ्स पर शेखी करता है वो अपने रब से महजूब हो जाता है. The one who shows off about himself, this creates a wall between him and his Allah. शेखी क्या कहेंगे? ये तो तारीफ है. जो कोई अपने नफ्स पर शेखी करता है. The one who boasts about himself. I'm a good man. This creates a veil between Allah and this individual. For example, takes pride in his good deeds. He takes pride in his wealth. दुनियादार माल से बर्बाद होते हैं दीनदार नेकियों से अमाल से बर्बाद होते हैं दुनियादार माल से और दीनदार अमाल से
दुनियादार माल का तकब्बुर करते हैं, दीनदार अमाल का तकब्बुर करते हैं, दोनों जाते हैं जन्नत में। Pious people, they show off because of their amal, and people of dunya, they show off because of their wealth. They both go to Jannah. हसब नसब से, हुस्न जमाल की वजह से, हसब नसब एंड हुस्न जमाल, अपनी ज़बान से भी अपनी तारीफ खुद कर लेते हैं। They praise themselves कि मैं तो ये कर चुका हूँ, मैं इतना नेक हूँ, मेरे पास उनकी खिलाफत है, नेक लोग, इतना मैंने जिक्र कर लिया, मैं इस कैफियत पे चल रहा हूँ, I have so much things, this is what happens to me, ऐसे ख्वाब आते हैं मुझे। सब इंसान इस पर दुखी में चलता है, इस पर शेखी। और आयरन पे पेट में चलेगा पड़ा है। है। मैंने अब्बू को बोला एकदम नहीं खत्म करना, मुश्किल के वक्त काम आएंगे। वो सही है मेरी बात। क्योंकि ऐसी जगहों पे तो बहुत इसको संभाल के रखना है। इसीलिए अपनी हिकारत करते रहना। Always do the things to disgrace yourself. Do the things to disgrace yourself. Do the things to disgrace yourself. और ask the people to yell at you. लोगों से कहो कि मुझे डांटते रहे। That's it. Oh, very good. It's very good for you. If somebody yells at you, it's very good for you. If somebody yells at me, it's very good for me. So if somebody is yelling, go and say, please yell more. बहुत कम है। Oh, yeah. May Allah reward you. Give him some money also. Keep accusing me, keep yelling me. This is what the Sheikh is saying. This will remove the arrogance inside the heart. अभी कोई डांट तो कहना है मुझे क्या समझा है, आते लड़ने के लिए आते ना पूरे। वो रियलिटी जब सामने आती है मुझे, कोई डांटे तो बोला उसको पैसे दो, बहुत शुक्रिया आपका, और डांटे। लोगों की सोबत से वो तो इस्लाह हो सकती है। उन्होंने कहा मुंह मारी करते हैं, क्या करते हैं मुंह मारी हो? फौरन वो अंदर से बाहर आता है। उन्होंने याद हमने मुंह मारी हो गई। जब वो डांट रहे हैं पैसे दो। आपका शुक्र आपने डांटा है, $100 रखना, जेल कर तो नहीं है तो कैश। वो अल्लाह वाले तो ऐसा ही सीखेगा, अच्छा होगा मेरे नफ्स की इस्लाह हुई। इसलिए क्या कहते हैं, so that's why do things so you can get yelled at. Oh, do things that you can get yelled at? Do things. Because getting yelled at, it removes the pride from the heart. But should I do it them to do that? It's like you. In other words, Is that doing yes. intention that
No, if somebody else at you, I know. so then you should think that this is good for me. Okay. But you don't do things that people put to react at you. Yes, no, don't do. That's, But if somebody is doing it, I you should be happy Okay, I and understand. be grateful that may Allah reward him. You know, he's removing that dirt from me. I understand now. Jazakallah, jazakallah for doing this. Please continue doing this. It's very good for me. एक बुजुर्ग अपने दोस्त के घर मेहमान गए. मेज़बान ने मुलाजिम से कहा पानी के लिए वो सुराही लाओ जिसको हम 7वें हज में खरीद के लाए थे. ये बता देते मेरे जैसा को जाहिल हो. मेहमान ने कहा हसन बसरी ने अच्छा अभी गौर से सुन ले सारे ये जिक्र की लाइन की बात आ रही है. I didn't translate this. One buzurg, pious man, he went to visit his friend. His friend said, please bring the water in that pitcher which I bought on my 7th Hajj. So, pious man said, you destroyed your 7th Hajj on this one thing. You destroyed your 7th Hajj on this one word. You understand? Because it's show off. Yeah. To show people I was 7. I made 7. Just try to do it. Gone. अच्छा जी जिक्र करने वाले से गौर सुने. जिक्र करने पर बातनी नेमत इसलिए दी जाती है ताकि इम्तिहान लिया जाए. You can do what? अब अल्लाह इम्तिहान लेना चाहते हैं कि इसको वो चीज़ देकर वो अपने बारे में क्या समझता है. इसलिए अल्लाह पाक उसको देते हैं वो चीज़ कि ये जाकिन का इम्तिहान होता है. उसकी चीज़ देते हैं. हाँ जिक्र के बाद में ये चीज़ पैदा हो गई, ज़ियारतें हो गई, मुझे क्या कहते हैं बाज़ को कश होने लगता है, बाज़ को बहुत चीज़ें होने लगती हैं. अभी अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होता है. अल्लाह देखना चाहते हैं ये अब इसे क्या करेगा. ये अगर उसने अपनी मेहनत का समरा समझा अब बस वहाँ से फिर वो गिरना शुरू हो गया. अल्लाह क्या करते हैं उससे लेते नहीं, उसको उसी धोखे में रख कर मौत उसी में देते हैं जिसने उसको क्या कहते हैं अपना उसका ख्याल समझा. इसलिए हर हाल में इसीलिए इंसान करो सिर्फ खुदा की तरफ हो, इन चीज़ों की तरफ ना हो. नेमत आ जाए तो मेरा तेरा शुक्र, आगे चलते रहो. इसको आगे समझते रहे, इस पर इंसान टिक ना जाए. उसको कहें अल्लाह तेरा शुक्र आपने ठीक. फजल समझकर शुक्र अदा करते हुए आगे बढ़ जाए. फजल इलाही समझकर शुक्र करते हुए आगे बढ़ जाए खुदा की तरफ. Allah subhanahu wa ta'ala gives the internal बाकी नेमत internal Insight. सही वर्ड मिल रहा. क्या है वहाँ सेंटेंस क्या है? देखिए बाकी नेमत इसलिए दी जाती है ताकि इम्तिहान लिया जाए. Allah subhanahu wa ta'ala sometimes open the doors of spirituality to the zakirin to test them. Sometimes they see things. Sometimes they see the dreams, things of this nature.
So Allah is testing them. How do they react to this? If he thinks, no, I got something, he failed. इसको फजल इलाही समझ कर शुक्र अदा करे, अपनी मेहनत और कमाल का ख्याल तक दिल में न लाए, आगे बढ़ जाए. You should be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, because it's not based on your amal you can get this. It's only fazl ilahi hai. Subhanallah. हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह के मुरीद अर्ज़ के हज़रत, मैंने 30 साल इबादत की है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ. शागिर्द ने कहा मैंने फरमाया तुम्हारे मिजाज में चूँकि तकब्बुर है, तुम्हें फ़ायदा नहीं हो रहा, कि तुम्हारी मेहनत से कोई फ़ायदा नहीं, तुम सिर्फ तकब्बुर की वजह से महरूम हो, इसका इलाज करो. मुरीद नरस के इसकी दवा क्या है? फरमाया सर मुंडाओ, अमामा फेंक दो, सर मुंडाओ, ठीक है, और बनियान पहनो, लुंगी पहनकर बाज़ार में खड़े हो जाओ, अखरोट का थैला गर्दन में लटकाओ और कहो ए बच्चा जो मुझे एक चमेट लगाएगा उसको हम एक अखरोट देंगे, जो मुझे अपने जूते से मारेगा मैं उसको एक अखरोट दूंगा. उन्होंने अस्तगफुरुल्लाह तो हो नहीं सकता. तो हज़रत ने फरमाया अगर तुम ये 30 साल नहीं 300 साल तक भी करते रहे तो तुमको खुदा नहीं मिलेगा. No. One man came to Abajid Bustani Rahmatullah. He said that, I'm doing ibadah from 30 years. I don't see anything. I don't feel anything. So, you know what? Because you have pride in you. He said that, what is the solution? He said, shave your head, wear a banyan, undershirt, wear sneakers, wear a lungi, buy some almonds and go to the streets, tell the kids, whoever slaps me, I'll give him almonds. That's astaghfirullah, I can't do that. No way. No way, Jose. I said that then. And he said, if you worship 30 years, 300 years, still you cannot reach Allah. जैसे मुसीबतें ईमान और मोहब्बत इलाही का इम्तिहान करने आते हैं, ऐसे ही गुनाहों की सज़ा के लिए भी आते हैं. मुसीबत comes sometimes because of iman and sometimes because of sin. इसको मोहब्बत इलाही समझो, गुनाहों की सज़ा, मगर ये ना समझो खुदा हमसे नाराज़ है. ऐसा समझने में इब्तिदाअन अव्वल क़ल्क़ होता है, फिर जब ये दुख हद से बढ़ जाता है तो यूँ समझने लगते हैं जब वो राज़ी ही नहीं तो जाने भी दो. बल्कि यूँ समझो अल्लाह राज़ी हैं, इसलिए मुसीबतें देकर गुनाहों से पाक करना चाहते हैं. जब इस तरह ख्याल हो जाए तो अपनी ताअत का भी दिल में ख्याल न लाओ, वरना उजुब और तकब्बुर पैदा होगा. Sheikh is saying, because of the good you have conditions in your life, because of the iman or because of the sins. But do not think
that Allah is angry with you. Because if you think like this, you will feel depressed. Then he said, what is the point of worshipping here anyway, angry with me? Well, in fact, you think Allah subhanahu wa ta'ala is sending these conditions to clean me from the sins. Allah is sending me these conditions. Like a few days ago, I think, I don't know, 2 days ago, Maulana says, if somebody is hitting with the stick on the carpet, it's not he wants to hit the carpet. No, he wants to remove the dirt from the carpet. May Allah give us the reality of this. Inshallah, we'll do some zikr now. इसको इसको चाहिए नहीं रखेंगे उसको ठीक है मैम इसका नहीं होगा go outside now. आपने दी दिया हमारे को अभी संभाल के रखनी है फिर बाद The bar. एक बताना इधर हाँ बस देखो तुम बैठे हो और हाँ आपने जूते तो पहन लिए ना बस आप बैठ जाओ उधर देखो आग शुरू भी हो गई है छोटी छोटी लकड़ियाँ डाल दो पहले हाँ छोटी लकड़ी पतली पतली हाँ वो जल्दी आग को पकड़ेगी बस ये ऐसी वहाँ जल नहीं दो अच्छा अभी इस्तग़फ़ार पढ़ लीजिए रीड इस्तग़फ़ार do the istighfar أستغفر الله الذي لا الذي لا إله إلا هو حي قيوم